Hello, all. Welcome. Thank you for joining in once again. Welcome, a big warm welcome to all our viewers for again trusting Pavitra to be able to keep providing you with meaningful content. So, we are back as promised with part two of Healing with Millets. So, all those who weren't there for session one, we discussed the benefits of these nutrient dense ancient grains and how powerfully healthy they are, not only for our bodies, but for our planet as well. And Meghna ji had discussed why rice and wheat fall in the category of negative grains, and she'd given the nutritional value of each positive millet. So all those who had missed the first module, I'd highly recommend for you all to watch it on YouTube. You can just go to our channel Pavitra Connect and type Healing with Millets, and you'll be good to go. Highly, highly recommended for you to get inspired and switch to these little balls of goodness and make them a staple in your diet. So, cutting to the chase, last time we discussed the benefits, and today we're going to be discussing the practical aspects of how to cook with these millets. So, I'd suggest that you grab a pen and paper if you want to jot down notes, or else you can always revisit this session on YouTube. So, yes, without further ado, we'll welcome Meghna ji, our eminent guest of today. Um, she's a qualified naturopath and a millet advisor. She's passionate about spreading awareness about millets, and she hosts multiple seminars and live cooking demos in Mumbai as well as in Indore. Dr. Khadar Wali, popularly known as the Millet Man of India, is her mentor. Without further ado, let's welcome her. Meghna ji, thank you so much for once again gracing the Pavitra platform and being here joining us and giving us some more valuable information. Thank you and welcome. So I think a quick show of hands of all those who weren't there in the previous session. So she could give a brief recap, and just discuss the 5 millets, the positive millets. Meghna ji, would that be okay? Oh. Am I audible? Yes, now you are. Now Okay. You are. तो लास्ट टाइम हमने पॉजिटिव मिलेट्स, नेगेटिव मिलेट्स, न्यूट्रल मिलेट्स एंड पॉजिटिव मिलेट्स विच आर आल्सो नोन एज द सिरिधान्या मिलेट्स, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी. तो मैं जस्ट आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ कि हमारे पॉजिटिव मिलेट्स जो थे, दे आर फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोडो मिलेट, लिटिल मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट. तो आई जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप. तो फॉक्सटेल मिलेट जो है उसे हम हिंदी में कंगनी, काकुन या राला भी बोलते हैं. और इसे इट इज येलो इन कलर. इट इज ऑल्सो नोन एज द इटालियन मिलेट. इसमें फाइबर 8% होता है और फॉक्सटेल मिलेट का फाइबर इस तरह से होता है कि ये हमारी लंग्स, हमारे जॉइंट्स एंड नर्व्स, इन तीनों को अंदर से डिटॉक्सिफाई करती है और क्लीन करती है. तो जो भी एलिमेंट्स होते हैं जो इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, नी पेन, जॉइंट पेन, arthritis, then anything related to nerves like Parkinson's, epilepsy, Alzheimer's, bedwetting by the kids. तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब में फॉक्सटेल बहुत अच्छा काम करता है. ये थोड़ा सा येलोइश सा रहता है. लास्ट टाइम आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि ये बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स कैसे दिखते हैं. सी, they are very very tiny grains, but they are powerhouses of nutrition and health. So our second millet is barnyard millet. In Hindi it is also like by other names, it is also known as the samo chawal, vari rice, So this is bhagar. the millet that is used in fasting, right? Yes, Barnyard millet. yes. This is the fasting millet. So ये जो millet है वो fasting में use होता है. जनरली जो हमारी फैमिलीज में हम खाते हैं ना फास्टिंग में. और लेकिन जो हम फास्ट में लाते हैं दैट इज बार्नयार्ड, बट दैट इज पॉलिश्ड बार्नयार्ड.
So it is not as good as our normally unpolished barnyard, but it is much better than wheat and rice. Yeah. So इसे हम Japanese millet भी कहते हैं, और barnyard जो है वो बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स को क्लीन करता है, जैसे लिवर, किडनी, स्प्लिन, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, तो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं ना, तो और इनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके लिए बार्नयार्ड मिलेट बहुत अच्छा है. थर्ड इज कोडो मिलेट. कोडो मिलेट इज ऑल्सो नोन एज द आदि बीज, बिकॉज ये हमारे इंडिया का ओरिजिनल मिलेट है जो कि शुरू से हमारे यहाँ पर होता था. बाकी चीजें काफी प्रिमिटिव टाइम से हमारे यहाँ उगाई जाती हैं, क्योंकि जो भी एक्सचेंजेस होते थे विद फॉरेन कंट्रीज, तो द सॉइल ऑफ अ कंट्री इज वेरी वेरी रिच, तो ये सारे हमारे यहाँ तो उगाए जाते ही थे. बट कोदो जो है वो हमारे यहाँ का ओरिजिनल मिलेट है, और इसे हिमालयन मिलेट भी कहा जाता है. तो पूरी हिमालय की तलहटी में ये अपने आप ही जैसे बर्फ पिघलती है ना, तो ये अपने आप ही ग्रो होना शुरू हो जाता था. तो कोडो मिलेट जो है इसमें 9% फाइबर होता है, और इट इज वेरी, इट क्लीन्स द बोन मैरो. तो जितनी भी चीजें ब्लड से रिलेटेड होती हैं, एनीमिया है, एलर्जी है, या सिकल सेल्स, या जो भी ब्लड से रिलेटेड चीजें होती है ना, उनमें कोदो मिलेट बहुत अच्छा काम करता है. फिर फोर्थ इज लिटिल मिलेट. लिटिल मिलेट इज ऑल्सो नोन एज कुटकी. कोदो इज, ये गुजरात में कोदरी के नाम से काफी होता है कोदो. तो लिटिल मिलेट इज नोन एज कुटकी और सावा इन हिंदी, और it is also known. People confuse kutki with kuttu, so we'll हाँ, clarify that it's that's not right. हाँ, कुटकी से कुट्टू को भी कंफ्यूज करते हैं बाय नेम, और अपीयरेंस में बार्नयार्ड मिलेट और लिटिल मिलेट में बहुत कंफ्यूजन होता है. yes. हाँ, जब मैंने पहले खरीदा था तब मैंने वापस शॉपकीपर को पूछा, मैं बोली आपने मिस्टेक से वही तो सेम ग्रेन नहीं? बोले नहीं, दे लुक सिमिलर बट दे लुक वेरी. that's right, that's right. So लिटिल मिलेट को अफ्रीकन मिलेट भी कहा जाता है, और ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनमें बहुत अच्छा काम करता है, उनको क्लीन करता है. सो और जो हार्मोनल इश्यूज होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम करता है. सो हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करना, या जितने भी लेडीज के मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए, या ब्रेस्ट कैंसर है, थायराइड इश्यूज हैं, या इवन जेंट्स के भी जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनमें ये लिटिल मिलेट बहुत अच्छा काम करता है. इसमें फाइबर 9.8% है. Fifth is the brown top millet. Brown top millet is also known as the American millet, and it has and in Hindi it is known as makra. ये सबसे लीस्ट नोन एंड यूज्ड मिलेट है हमारी कंट्री में. अभी भी ये थोड़ा सा रेयर है, हर जगह इतने इजीली मिलता नहीं है, लेकिन इसमें फाइबर सबसे ज्यादा है 12.5%. और अमेरिका में तो मतलब ये ऐसे ही इतना टनों में उगता है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कर रखा है, एंड वहाँ पर इसे यूज किया जाता है कैटल फीड में, एंड इट इज अ वंडरफुल ग्रेन. वहाँ लाइक वी हैव हर्ड कि किनवा वगैरह जो लाइक साउथ अमेरिका का, इट्स पॉपुलर इन यूरोप एंड अमेरिका एंड ऑल, बट अमेरिका का खुद का ब्राउन टॉप दे आर नॉट यूजिंग. तो ब्राउन टॉप जो है उसे हरी कंगनी भी कहा जाता है, और इसमें सारे वो गुण होते हैं जो फॉक्सटेल मिलेट में होते हैं, लाइक इट क्लेंजेस द लंग्स, द नर्व्स एंड द जॉइंट्स. और ब्राउन टॉप मिलेट में और भी क्वालिटीज है कि इट्स एंटी कैंसरस, प्लस it also cleans the whole digestive tract very well. So brown top is also a very very good millet. So मैं आपको यही बताना चाहती थी कि ये 5 मिलेट्स जो थे इन्हीं के बारे हम आज बात करेंगे. पर्टिकुलर मिलेट जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए पर्टिकुलरली अच्छा है? नहीं, एक्चुअली देखिए जो ये मिलेट्स है ना, वो हमारी हर मिलेट अलग अलग बॉडी ऑर्गन को क्लीन करता है. सो एज अ होल वी हैव टू ईट ऑल 5. अगर आपको कोई इश्यू भी है ना,
तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर मिलेट आपके लिए ज्यादा अच्छा है, आपके इश्यू के लिए अच्छा है, बट वी हैव टू ईट द ऑल द मिलेट्स सो दैट हमारे बिकॉज जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं वो होलसम रहता है ना. इट्स नॉट लाइक कि हम कोई एक ऑर्गन को ट्रीट कर रहे हैं. वी आर डिटॉक्सिफाइंग द होल बॉडी. ओके, सो नाउ अनदर क्वेश्चन कि इन्हें ये जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं वैसे ही कुक कर सकते हैं या वही चीजें बना सकते हैं जो न्यूट्रल मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरी, रागी, वी कैन यूज देम द सेम वे? नो नो, एक्चुअली देखिए जो ज्वार बाजरी होती है ना, उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा साइज में भी थोड़े बड़े होते हैं, और उसका जो आउटर कवरिंग होता है न्यूट्रल मिलेट्स जैसे आप बोल रहे हैं, तो ज्वार, बाजरी, रागी, कॉर्न, प्रोसो, ये सब न्यूट्रल मिलेट्स में आते हैं. लेकिन इन मिलेट्स का जो आउटर कवरिंग होता है ना, काफी हार्ड होता है, तो उन्हें हम एज अ होल ग्रेन यूज नहीं कर पाते हैं. हाँ, प्रोसो इज एन एक्सेप्शन, प्रोसो का आप कर सकते हैं, बट अदर ग्रेन्स आप ऐसे एज अ होल ग्रेन यूज नहीं कर पाते हैं. ओके, सो दीस मिलेट्स वी कैन यूज देम होल. हाँ, उन्हें या तो आपको क्रैक करना पड़ेगा, तो आप उसका रवा बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, और जनरली आपने देखा होगा हम उसे आटा बनाकर, रोटी बनाकर ही यूज करते हैं, है ना. तो उन्हें हम एज अ होल ग्रेन यूज नहीं करते, आटा बनाकर और ऐसे यूज करते हैं. जबकि ये जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं, they are very small and they are very soft also. फाइबर भी काफी है लेकिन काफी सॉफ्ट है ये, और इन एज अ होल ग्रेन हम अच्छे से यूज कर सकते हैं. होल ग्रेन इज यूज्ड, तो इससे हमें बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ता है कि आटा बनवाना है, ये करना है. इवन इफ यू हैव द ग्रेन, आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं. रेडी टू कुक. हाँ. और फिर वे कौन सी एज से ये कौन सी एज से स्टार्ट कर सकते हैं इसे खाना? आप 9 months के बेबी को जब आप वीन करते हैं ना, तब से स्टार्ट कर सकते हैं. Okay, so from 9 months till whatever it means, like even elderly people. yes. बिल्कुल Yes. ठीक है. हाँ. Okay. और कोई पर्टिकुलर ऑर्डर है जैसे हुआ न्यू टू मिलेट्स, यू नो, कि इंट्रोड्यूस कैसे करें, लाइक जो इजियर है डाइजेशन के लिए, कोई पर्टिकुलर मिलेट जो इजी है डाइजेशन के लिए? हाँ, जैसे जब हम इसे स्टार्ट करना चाहें तो इट्स बेस्ट कि हम लिटिल मिलेट से स्टार्ट करें, कुटकी से, क्योंकि वो डाइजेशन में सबसे इजी होता है. तो आप लिटिल मिलेट से स्टार्ट कर सकते हैं. लिटिल मिलेट के बाद आपको ठीक लगे तो देन यू कैन गो ऑन टू कोडो. कोडो के बाद आप बार्नयार्ड यूज कर सकते हैं. बार्नयार्ड के बाद फॉक्सटेल, एंड लास्ट में ब्राउन टॉप. तो ऐसे करके धीरे धीरे एक एक करके आप अपने फूड प्लान में से लेते जाइए, और फिर पूरे पांचों आप एवरी मिलेट यू कैन हैव 2 days each. Okay, so 2 days little and then 2 days what kodo. So can we mix the millets? Millets को mix कर सकते हैं कोडो के साथ लिटिल? नहीं, जैसे आपने सुना होगा ना, मार्केट में मल्टीग्रेन आटा मिलता है, तो दैट इज नॉट अ गुड आइडिया एक्चुअली, क्योंकि कभी भी कोई भी 2 ग्रेन्स यूज नहीं करना चाहिए. इवन अगर आपका गेहूं चावल भी है ना, वो भी यूज मिक्स नहीं करना चाहिए. इन द सेंस, अगर आप एक ही मील में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, इस तरह बहुत कॉमन है लोगों का खाना, है ना, बट उसमें आप फिर 2 ग्रेन्स खा लेते हैं, चावल भी और गेहूं भी, तो दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस. एंड इवन उसे जब हम मिक्स करके खाते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग प्रैक्टिस. तो जैसे इन मिलेट्स को मैंने आपको बताया, इवन जो ज्वार, बाजरा सब मिक्स करके खाते हैं ना, तो वो ठीक प्रैक्टिस नहीं है. जैसे हाँ, तो ये मिलेट्स के जैसे मैंने आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज बताए हैं, वैसे ही हमारे न्यूट्रल मिलेट्स में भी अलग अलग गुड प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना. तो एज अ फूड जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें तभी मिलेगा जब हम उसे एक सर्टेन अमाउंट में खाएंगे, है ना. पर्टिकुलर अमाउंट है एक मिलेट मतलब क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए? या एक दिन में आप कम से कम एटलीस्ट 100 to 150 ग्राम्स इतना क्वांटिटी लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा. लंच डिनर मिला के? हाँ, पूरा एक दिन में एटलीस्ट 100 to 150 ग्राम्स हो. तो अब अगर हम लोग इसे मिक्स करेंगे तो क्या होगा, 20 ग्राम्स फॉक्सटेल, 20 बार्नयार्ड, 20 कोडो, तो हमें किसी भी चीज का एडवांटेज नहीं मिल पाएगा. एंड जैसे एक ही दिन में एक ही मिलेट खाना रेकमेंड करेंगे या फिर लंच के लिए कोई मिलेट और डिनर के लिए मिलेट, वैसे कर सकते हैं? देखिए, हाँ, मिलेट्स जो रहते हैं ना, इनको बहुत क्वांटिटी में एक बार में आप खा नहीं पाएंगे.
तो अगर आप लंच में एक मिलेट लेंगे, डिनर में कोई और मिलेट लेंगे, तो आपका मतलब जो 100 to 150 ग्राम्स एटलीस्ट वी आर प्लानिंग कि हमें खाना चाहिए, तो उतना आपका हो नहीं पाएगा। इसलिए इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट एक मील में सिर्फ वो ही एक मिनट से खाना बनाइए। जैसे अगर आपकी थाली है सपोज, तो उसमें आप एक ही ग्रेन से, जैसे आप जब गेहूं चावल भी खाते हैं तो आप रोटी होती है आपकी प्लेट में, चावल होता है, फिर कोई फरसाण होता है जैसे खमन हुआ या समोसा हुआ, या जितनी भी चीजें जो ग्रेन से बनती है ना, या आपकी डेजर्ट भी हुई, हलवा या खीर या ऐसे कुछ हुआ, तो सारी चीजें आपको एक ही मिनट से बनानी है। Okay. आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसे अलग अलग मिनट से बनाएं। तो एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर थाली शुड बी मेड विद 1 मिनट ओनली। और ऐसे हम पूरे दिन में जितनी भी चीजें खाते हैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, जैसे ब्रेकफास्ट में सपोज आपने उपमा बनाया, लंच में रोटी बनाई, शाम को खिचड़ी या दलिया बनाया, तो फुल डे आप कोई एक ही मिनट यूज कीजिए ऐसा। तो इन मिलेट से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, और कोई पर्टिकुलर मिलेट कोई पर्टिकुलर डिश के लिए स्पेसिफिक है, या सब मिलेट्स से कुछ भी बन सकता है? लाइक यू कैन यूज ऑल दीज मिलेट्स फॉर एनी ऑफ द वैरायटीज ऑफ हाँ, डिशेस। तो ये जो मिलेट्स है ना, दे आर वेरी वेरी वर्सेटाइल। इससे आप हर वो चीज बना सकते हैं जो गेहूं और चावल से बनती है। एवरीथिंग, मतलब रोटी, हांडवा, खांडवा, ब्रेड, बिस्किट, कुकीज, इडली, डोसा, मतलब वॉट एवर यू नेम इट। एंड बाय द वे, दिस इज माय लड्डू। आज ब्राउन टॉप के रोटी बच गई थी तो उससे लड्डू बनाए। हाउ इनोवेटिव। सो मतलब इट इज सो इजी, इन द सेम मील आप रोटी तो बना ही रहे हैं, उसी को थोड़ा पीस के आपने लड्डू भी बना आपने लिया। दलिया बनाया था फिर कि रोटी बनाई थी आपने ब्राउन टॉप की? मोटी रोटी बनाई अच्छा, और फिर उसे मिक्सी में पीस लिया। ओके ओके। तो एक सेम मील में आप एक ही मिनट से सारी चीजें बना सकते हैं। इनफैक्ट पूरे दिन जितने भी मील्स आप खा रहे हैं उसमें आप सेम मिनट से कुक कीजिए, तो आपको पूरा आपको एडवांटेज मिलेगा उस पर्टिकुलर मिनट से। और मिलेट्स खरीदते वक्त क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? व्हाट इज इम्पोर्टेंट व्हाइल बाइंग मिलेट्स? हाँ व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी टेकन के, यू नो? हाँ, तो ये जो मिलेट्स हैं, ये बेसिकली एक तो ऑर्गेनिक होते हैं टोटली, मतलब आई शुड कॉल देम नेचुरल, नॉट इवन ऑर्गेनिक, बिकॉज इसमें कोई केमिकल डालने की जरूरत ही नहीं होती है। बिकॉज दे रिक्वायर ओनली 200 to 300 लीटर्स ऑफ वाटर 1 kg ग्रो करने के लिए। तो ये किसी भी तरह की जमीन में हो जाते हैं, इवन पथरीली है, रेतीली है, बहुत ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं और बहुत ही स्टर्डी क्रॉप होती है ये। तो उसके कारण क्या होता है कि इसमें ना, बिकॉज इट डजंट टेक मच वाटर, तो उसमें केमिकल भी नहीं पड़ता है। राइट। तो हाँ, तो अगर आप इसमें, नहीं करता है हाँ, क्रॉप। अगर आप इसमें केमिकल डालने की कोशिश करेंगे ना, तो भी मे बी आपने केमिकल डाला तो ऐसा लगेगा उसके पत्ते ज्यादा ग्रीन हो गए या ज्यादा लश दिख रहा है, बट उसके ग्रेन पर उसका कोई असर नहीं आता है। या तो दे आर वेरी वेरी नेचुरल एंड फुल ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसके कारण क्या होता है ना कि कीड़े भी जल्दी पड़ने लगते हैं। तो इसे जब भी आप, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देन हाउ डू यू स्टोर देम? या बट तो फर्स्ट इसमें, देन पहले आप हाँ क्या बातें ध्यान में रखनी खरीदते हाँ, वक्त, लाइक यू नो अनपॉलिश्ड और लाइक व्हाट या काइंड? तो जब आप इसे खरीदते हैं ना, तो यू हैव टू रिमेम्बर कि या तो आप बहुत क्वांटिटी में तो नहीं खरीदें, सिर्फ आपका 1 या 2 महीने जितना चल जाए, या मैक्सिमम ये 3 to 4 months रहेंगे, है ना। रेफ्रिजरेट करें तो? अगर आप इसे रेफ्रिजरेट करेंगे तो शेल्फ लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन कितना सारा रखेंगे ना, लाइक अगर आप रोज खा रहे हैं तो रेफ्रिजरेट भी कितना करेंगे। तो बेटर है कि हम इन्हें कम, स्पेशली आप बॉम्बे वगैरह में तो चीजें और बहुत जल्दी खराब होती हैं। तो मुझे लगता है 3 to 4 months भी शायद बॉम्बे के लिए तो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए इसे हम लिमिटेड क्वांटिटी में खरीदें और उसे यूज करें तो बेटर है। और सेकेंडली ये है कि इन्हें जब हम खरीदते हैं तो वी हैव टू रिमेम्बर, जैसे मैं जुहू मार्केट में मैंने देखा था एक शॉप पर, लाइक मेरी फ्रेंड लेकर आई थी, तो लाइक शी टोल्ड मी कि मैं दीदी ये लेकर आई हूँ, मैंने
आई वाज सरप्राइज, शी टोल्ड मी द रेट्स। मैंने कहा ये तो आप बहुत ही सस्ता लेकर आए हो। फिर मैंने कहा कि इट्स नॉट द ग्रेन, व्हाट दे हैव गिवन टू यू इज द सीड विद हस्क आपको दिया है। एंड प्रोबेबली शायद शॉपकीपर को भी नहीं पता होगा, क्योंकि इसका नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है, तो उन्हें भी लगा होगा कि ये ग्रेन है, बट वो सीड था विद द हस्क। तो उन्होंने वो लेकर आई, शी वाज ट्राइंग टू कुक इट, और वो उनसे कुक नहीं हो पाया बिकॉज शी वाज फाइंडिंग, भी नहीं होता, खा भी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो वी हैव टू सी कि जो हम बाय कर रहे हैं वो विद हस्क ना हो और अनपॉलिश्ड हो, क्योंकि वी हैव टू आस्क कि मुझे अनपॉलिश्ड मिलेट्स चाहिए, बिकॉज सो मेनी टाइम्स वी गेट पॉलिश्ड मिलेट्स, है ना। और हमें पता कैसे चलेगा कि मिलेट्स पॉलिश्ड है या अनपॉलिश्ड है ना। तो बेसिकली ये जो ग्रेन्स होते हैं ना, दे आर वेरी टाइनी, लेकिन इसके टॉप पर आपको एक डॉट दिखेगा, ऐसे एक ब्राउन डॉट दिखेगा, ब्लैक डॉट दिखेगा, दैट मीन्स कि वो अनपॉलिश्ड है। अगर वो आपको डॉट नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि इट इज पॉलिश्ड। तो आप जो मार्केट से सामो लाते हैं ना, वो भी आप देखिएगा, उसमें आपको डॉट नहीं दिखेगा, वो पूरा व्हाइट दिखेगा, व्हाइट ही होता है। हाँ, राइट, ओके। तो अनपॉलिश्ड एंड डीहस्क्ड, मतलब हस्क मिलाकर और अनपॉलिश्ड खरीद। बिल्कुल। जब ये हस्क में रहता है ना, तब तो ये 7-8 years तक यू कैन कीप इट इन दैट फॉर्म, लेकिन हम लोगों के खाने के लिए इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसे आप पीस के बना के खा भी सकते हो, बट इट्स पैलेटेबल भी नहीं होगा, और उससे कुछ ढंग से उतना बनेगा भी नहीं। और स्टोर कैसे करें फिर इन्हें, मतलब कुछ अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रखना है तो कुछ डाल सकते हैं उसमें? हाँ, एक तो जैसे आपने कहा कि हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं। बॉम्बे में तो आपने देखा होगा दाल वगैरह को भी, मसालों को काफी लोग रेफ्रिजरेट करते हैं, इवन रवा एंड, हाँ, मॉइस्चर की वजह से। तो इसे भी आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। और सेकेंडली इसका मैंने देखा है कि कई बार ना लोग आटे वगैरह खरीदते हैं, रवा खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शेल्फ लाइफ आटे की बहुत ही कम होती है। लाइक 1 week होता है इसका शेल्फ लाइफ। तो आटे की शेल्फ लाइफ ओनली 1 week? हाँ, एक्चुअली कोई भी ग्रेन होता है ना, उनके आटों की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। एक व्हीट है जो आप 15 days शेल्फ लाइफ होती है, बट अदरवाइज बाकी जितने भी मिलेट्स हैं एक्चुअली उनके शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, 1 week। और 1 week आटे की हाँ हाँ। तो मिलेट्स के जितने भी, इवन रागी, ज्वारी, बाजरी, जितने भी आटे होते हैं ना, इवन विद दिस पॉजिटिव ग्रेन्स, तो इनके आटों की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो थोड़ा सा भी पुराना हुआ ना, तो फिर वो टेस्ट में बिटर होने लगता है, और उससे ढंग से रोटी भी नहीं बनती, ऐसे टूटने लगती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ट्राई करें कि जितना हो, अगर आटा पिसवाना भी है तो हम खुद ही उसे फ्रेश पिस के यूज कर लें, या एक वीक में खत्म करते चलें। क्योंकि एक तो फिर डिफिकल्ट है, क्योंकि ये रेगुलर कोई भी प्रोविजन स्टोर में मिलेगा नहीं, like मिलता है, easily available होगा नहीं, and then if you buy every, like it becomes difficult, it's not practical कि मतलब हर एक वीक आप फर्बिश करो आपका स्टॉक। तो घर पे कैसे कुछ बना सकते हैं आटा, लाइक किसी को ब्लेंड कर दें मिलेट्स को? सी द थिंग इज, आटे तो हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं तो ज्वार बाजरा वगैरह के भी मिलते हैं, राइट, बट दैट इज ऑल्सो नॉट राइट, क्योंकि वो शेल्फ लाइफ उसकी भी कमी होती है ना। और हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं तो वी डोंट नो कि वो मतलब उसमें डेट तो दिया होता है पीछे कि कब इस पीसा है, या बट आप देखेंगे नेक्स्ट टाइम शेल्फ लाइफ उसकी बहुत कम होती है। वो लिखते हैं बेस्ट बिफोर 6 months, बट इट्स नॉट सो। उसका न्यूट्रिशन भी कम होता है और उसका शेल्फ लाइफ भी कम होता है, टेस्ट भी उसका फर्क पड़ता है। तो ये स्टोर करते वक्त जब मिलेट्स, होल मिलेट्स स्टोर करते हैं, तो आप बता कुछ डाल सकते हैं उसमें, हाँ, लौंग या कुछ टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्गर, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ? जी, तो इसे प्रिजर्व करने के लिए या तो आप नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं, और नीम की पत्तियां अगर अवेलेबल ना हो तो लौंग होती है ना, क्लव्स, 5, 7, 8, 10 लौंग डाल दीजिए, 8, 10 लाल मिर्ची डाल दीजिए डब्बे में, और उसके साथ फिर इसे रखिए। और अगर एक क्वेश्चन था, उसे अगर रोस्ट करके रखें तो क्या उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सकती है? रोस्ट करके रखें तो? हाँ, बढ़ सकती है शेल्फ लाइफ।
और रोस्ट करके फ्लेवर भी इसका थोड़ा बेटर आता है। एनहांसेस द टेस्ट, तो मैंने ये सुना शायद शेल्फ लाइफ भी बढ़ती हो हाँ रोस्ट हाँ, करके। शेल्फ लाइफ हाँ बढ़ जाएगी, कीड़े वगैरह उतना इजीली नहीं हाँ। लगेंगे, आप रोस्ट करके भी रख सकते हैं। और ये बता सकते हैं फिर घर पे अगर आटा पीसना है तो मिलेट से बन सकता है आटा? एक्चुअली मिक्सी में भी आप पीस सकते हैं, हाँ, लेकिन वो बहुत बारीक आटा जो हमें रोटी के लिए चाहिए होता है ना, वो वो नहीं। मिक्सी में नहीं पिसाता है। दूसरी चीजें तो बन जाएंगी, बट रोटी है तो उसके लिए मिक्सी में पीसना बहुत डिफिकल्ट है। ओके। तो या तो आप घर में छोटी छोटी आजकल बहुत सारी आटा चक्कियाँ मिलती है, या तो आप वो ले आइए, या आपका जो लोकल जो आटा चक्की वाला है आप उससे पिसवाएंगे तो वो आई थिंक मिनिमम 2 kgs कर होता है उसका। या एकदम हाई पावर्ड ब्लेंडर हो किसी का तो आई थिंक, आई डोंट नो बट या। आई डोंट नो, हो सकता है एकदम हाई पावर्ड हो तो, बट मेरे हाँ, पास जो एक रेगुलर मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, हाँ, उसमें उसमें नहीं हो। डिफिकल्ट होता है। हाँ, राइट। ओके। इन्हें पकाते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? मिलेट्स को सबसे पहले तो, मिलेट्स पकाने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि इट नीड्स टू बी सोक। विदाउट सोक किए हम मिलेट्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मिलेट्स आर वेरी हाई इन फाइबर एंड लिग्नान्स। तो जब हम इसे सोक करते हैं तो इसके फाइबर और लिग्नान सॉफ्ट हो जाते हैं और ज़्यादा इजीली डाइजेस्टिबल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। इसलिए हमें इसे ये एक स्टेप तो इसका एक्स्ट्रा है ही कि आपको इसे सोक कर कर ही यूज़ करना है। कितने घंटों के लिए? इसे सोक करना है 6 to 8 आवर्स मिनिमम, और आप 12 आवर्स तक भी इसे सोक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सोक करेंगे ना तो फिर वो थोड़ा पानी फ्रॉदी होने लग जाता है ओके। और थोड़ा फर्मेंट होना शुरू हो जाता है। तो ओके। ये जो ग्रेन्स हैं, ये बेसिकली जब हम इन्हें सोक करते हैं ना तो ये वैसे ही छोटे छोटे रहते हैं, जैसे दाल होती है तो दाल कैसे फूल जाती है ना, हम सोक करते हैं तो उसको हम सोक करने के लिए जैसे 3 times वाटर 4 times वाटर में सोक करते हैं, तो इसमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वन मोर थिंग बिफोर सोकिंग, मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम ये मिलेट्स को वॉश करते हैं, है ना, तो जैसे जब हम वॉश करते हैं ना तो आप इसे सोक करेंगे, उसके बाद मतलब जब आप इसे वॉश भी करेंगे ना तो आप देखेंगे इसमें से कुछ कलर्ड पानी निकल रहा है, बट डोंट थिंक कि ये कलर्ड पानी है तो मुझे इसे और वॉश करते जाना है। सॉरी टू इंटरप्ट, पर इन्हें वॉश करके सोक करना है या सोक करने के बाद वॉश, मतलब 6 आवर्स नहीं नहीं और नहीं, सोक करना पहले फिर वॉश करेंगे ना, क्या जैसे है? इट्स अ होल ग्रेन, तो हम पहले एक बार वॉश करते हैं कोई भी चीज ना, तो वॉश करेंगे लेकिन सिर्फ एक बार, थोड़ा हल्के हल्के हाथों से, क्योंकि इसके लिग्नान्स जो होते हैं इसके आउटर सरफेस पे होते हैं, तो हम जितनी ज्यादा बार इसे वॉश करेंगे ना तो पानी के साथ इसके लिग्नान्स खत्म होने लगते हैं। इसलिए इसे वॉश, भले ही आप देखिए कि उसमें से कलर्ड पानी निकल रहा है, और डोंट वरी, वो अच्छा है पानी, उसमें कुछ भी खराब नहीं है। आप इसे सिर्फ एक मैक्सिमम 2 बार वॉश कीजिए एंड देन आप इसे सोक कर लीजिए, ओके। राइट। हाँ, और इसे आप जब सोक करेंगे ना तो इसका जो पानी है, एक तो आप बहुत कम पानी में इसे सोक कर सकते हैं, लाइक आपकी 1 कटोरी मिलेट है तो आप उसे 1 कटोरी पानी में सोक कर लीजिए, क्योंकि कई बार हम उसे पीसते हैं या जिस भी डिश में यूज करना हो तो ज्यादा पानी में सोक किया तो शायद वो हमारे लिए कई बार एक्स्ट्रा भी हो जाता है, तो उसे कम पानी में सोक करेंगे तो अच्छा रहेगा हमें। और वी हैव टू रिमेम्बर कि इसका पानी जिसमें हमने इसे सोक किया है उसे हमें फेंकना नहीं है। जैसे दालें होती है ना, तो जिस पानी में हम दाल को सोक करते हैं उस वाटर को हम फेंक देते हैं, क्योंकि उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो थोड़े से कुछ ब्लॉकर्स होते हैं, लेकिन इसके पानी को हमें फेंकना नहीं है, बिकॉज हमें इसे सोक करने के बाद उस पानी में इनके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं और लिग्नान्स होते हैं, तो और अगर कोई हम उस, ऐसी चीजें बना रहे हैं जिसमें पानी की जरूरत ना है, जैसे इडली या डोसा या हलवा, जिसमें पानी की जरूरत नहीं है, तो फिर वो पानी किसी और चीज में यूज कर सकते हैं या क्योंकि देखिए इडली डोसे में तो उस पानी के साथ ही हम इसे पीस लेंगे, है थोड़ा। ना, हाँ। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत पानी मत यूज कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन जितना हम 1 आध कटोरी में इसे
जैसे 1:1 के रेशियो में सोक कर रहे हैं तो वो कभी भी ज्यादा नहीं होगा। तो यू कैन यूज द सेम वाटर। लेकिन अगर हम फिर भी ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसमें कि हमें इसके पानी की जरूरत नहीं है, सपोज हमें इसे रोस्ट करना है और उस पानी को जैसे अगर आप उपमा बना रहे हैं, इसे रोस्ट करके बना रहे हैं, तो आप उसे छान लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, लेकिन उसके बाद अगेन यू कैन यूज दैट वाटर। और अगर इस पानी की उस पर्टिकुलर डिश में जरूरत नहीं है तब भी आप वो पानी फेंकिएगा मत, आप उसे दाल में या किसी भी करी में, सूप में यूज कर लीजिए, बट दैट वाटर इज आल्सो वेरी न्यूट्रिशियस। या और कुकर में पकाने के लिए आपकी क्या सजेशन, मतलब पका सकते हैं या पकाना चाहिए या नहीं? हाँ, एक्चुअली देखिए कुकर यूज करना ठीक नहीं है। ये मिलेट्स तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप वैसे भी इसे सोक करके रखेंगे और नॉर्मल पैन में पकाएंगे, बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन आप अपनी दूसरी भी जो दाल चावल वगैरह बनाते हैं, दालें वगैरह जनरली मैंने देखा है लोग कुकर में ही बनाते हैं, तो प्लीज आप कुकर में मत बनाइए, क्योंकि कुकर में 85% न्यूट्रिशन फूड का खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हाई हीट पर पकता है खाना। तो सारा न्यूट्रिशन उसका, ओनली 15% न्यूट्रिशन आपको मिल पाता है उस खाने का। तो इट्स बेटर कि आप कुकर ना यूज करके बिना कुकर के ही खाना बनाए, तो आपको पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा फूड का। स्पेशली अगर मिट्टी के पॉट्स में बनाए तो उसका 97% न्यूट्रिशन इज इंटैक्ट। ओके, कोई पूछ रहे हैं कि कैन वी ड्रिंक द वाटर इफ वी डोंट यूज दैट वाटर? देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द व्यूअर। नहीं, आप पकाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको आई थिंक आपको इच्छा भी नहीं होगी पीने की, थोड़ा से कलर्ड वाटर रहेगा। या ओके, सो नाउ अगर सोक करना भूल गए या हमें इंस्टेंट कुछ चाहिए कभी भी, या एडवांस में हमने नहीं किया है, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन है? हाँ, आप दो चीजें ट्रैवलिंग के लिए जो यूज कर सकते हैं, हाँ वहां पे तो भिगोने का टाइम नहीं होगा या। हाँ, तो उसके लिए हम दो चीजें कर सकते हैं कि जैसे ये जो मिलेट्स हैं इनको सोक करना तो जरूरी है, राइट? आप इन्हें सोक करके सुखा लीजिए, है ना? तो आप सुखा के रखेंगे सनलाइट में, सन ड्राई करना है? नहीं, आप रूम में भी सुखा सकते हैं, फैन के नीचे या नॉर्मली भी। जैसे मैं इंदौर में रहती हूँ तो यहाँ की एयर काफी ड्राई है, तो मेरा नॉर्मल प्लेटफॉर्म पर भी सूख जाता है। कितना टाइम और लगता है उसे सूखने में? बॉम्बे में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको सुखाने में आपको बॉम्बे में टाइम भी लगेगा भी। जैसे बारिश का टाइम है, आई डोंट नो आप कितना अच्छा सूख पाएगा, तो उसे आप रोस्ट करके रख लीजिए। ओके, पैन में उसे पानी से निकालिए और रोस्ट कर लीजिए, है ना? तो उससे आपको फिर गीलेपन का प्रॉब्लम नहीं होगा। वो मतलब 15-20 मिनट्स रोस्ट करने से ना आपका रेडी हो जाएगा, और उसका जो पानी है वो आप फेंकेगा नहीं, है ना? तो इस तरह जब आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ आप हमेशा ऐसे थोड़ा सोक करके रखें, तो कई बार क्या होता है कि हम गलाना भूल गए हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा बनाना है कि कोई गेस्ट आ गए और आपको कुछ बनाना है, या आपको टाइम नहीं है, और कई बार लोगों को लगता है अरे इट्स वेरी टीडियस कि मुझे इसको गलाना है और फिर पकाना है। तो व्हाट यू कैन डू इज आप इसे गला के सुखा कर रख लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपको जब भी बनाना है जस्ट उसको 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर आप गला के फिर बना सकते हैं। और सेकेंडली ये कि अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो ट्रैवल के टाइम भी आपके लिए ये बहुत इजी रहेगा। अगर आप गला के सुखाकर अपने साथ कैरी करें ना, तो इट्स वेरी इजी। आप राइस कुकर में अपना राइस बना लीजिए, या आप किसी के घर हैं तो आप बोल सकते हैं कि प्लीज आप मेरे लिए इसका राइस बना दीजिए, या व्हाटएवर ना, तो इट बिकम्स वेरी इजी to use it. So कोई particular like हर एक millet का like millet water ratio है कोई particular, like for foxtail millet you need to soak it in this much or cook it in this much water, like if you take half a cup of this millet then you need actually हाँ, ये सारे जो मिलेट्स है ना, ये इनके फाइबर कंटेंट थोड़ा अलग अलग होता है, प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग अलग है। तो जैसे हम जब राइस बनाते हैं तो राइस में हम 1 कटोरी राइस के लिए जनरली 2 कटोरी पानी लेते हैं, है ना? पर ये जो ग्रेन्स हैं, मैंने आपको बताया कि जब आप इसे सोक करेंगे तो ये वैसे ही छोटा छोटा रहेगा,
लेकिन जब हम इसे कुक करते हैं ना तो ये बहुत स्वेलअप होता है, बहुत फूल जाता है। वो लाइक आप 1 कटोरी बनाएंगे ना तो वो 4-5 कटोरी बन जाएगा, तो इसलिए पानी इसमें ज्यादा लगता है। तो जैसे राइस में आप 1:2 का प्रपोर्शन लेते हैं, तो इन मिलेट्स के लिए आपको थोड़ा अलग अलग प्रपोर्शन रखना पड़ेगा। मैं आपको जो क्वांटिटी बता रही हूँ वो मिनिमम क्वांटिटी बता रही हूँ, है ना। यू कैन टेक मोर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपको थोड़ा कैसा पसंद है अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चेंज द वाटर कंटेंट, बट ये मिनिमम है। तो जो लिटिल मिलेट है उसको बनाने के लिए आपको 2.5 टाइम्स वाटर मिनिमम लगेगा, है ना। जो बार्नयार्ड मिलेट है उसे भी मिनिमम 2.5 टाइम्स वाटर लगेगा। कोडो मिलेट जो है उसे मिनिमम 3 टाइम्स वाटर लगेगा। फॉक्सटेल मिलेट जो है उसे मिनिमम 3.14 टाइम्स वाटर लगेगा। और ब्राउन टॉप जो है उसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है, 3.5 टाइम्स पानी लगेगा। तो दिस इज द मिनिमम क्वांटिटी, आप उससे ज्यादा आपकी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं, whichever kind of consistency you like for your rice, like that. Okay. So, and if they're cooked, वो कैसे पता चलेगा? Like, our millet rice is cooked. Like, how do we come to know that? हाँ, तो जब आप मिलेट राइस बनाते हैं ना, तो जैसे आप चावल बनाते हैं तो क्या करते हैं, या तो आप थोड़ी सी देर उसको 15-20 मिनट गलाते हैं और फिर बना लेते हैं, है ना, या फिर उसे सोक करने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। लेकिन ये जो मिलेट्स हैं इन्हें हमें कम से कम मिनिमम 6 to 8 आवर्स सोकिंग लगता है। तो इसे सोक करने के बाद आप चाहें तो गला तो सिर्फ 1 कटोरी पानी में सकते हैं, लेकिन कुक करने के टाइम हमें इसे पूरा जितना वाटर चाहिए उतना क्वांटिटी में आप बनाइएगा, है ना। हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये पानी ज्यादा लेते हैं, स्वेलअप अच्छे होते हैं, तो थोड़ा सा पैन भी आप अच्छा बड़ा लीजिएगा। और जब थोड़ा सा पानी बाकी हो, है ना, जब ऊपर थोड़ा सा पानी हो ना मिलेट्स में, तभी आप इसे बंद कर दीजिए एंड लेट इट कुक, कीप इट क्लोज्ड फॉर अनदर 10-15 मिनट्स। ये सारा पानी उसका सोक कर लेगा। अगर आप इसे पूरा पानी सुखा लेंगे ना तो हो सकता है आपको थोड़ा ड्राई लगे ये खाने में, इसलिए हमेशा बेटर है कि जब थोड़ा पानी हो आप इसे बंद कर दें। Okay, और ये throughout can these be had throughout the year? जैसे ज्वार like बाजरी we have it in winter, वैसे तो in millets के लिए कोई particular? हाँ, एक्चुअली ये क्या है कि ये एक सम टाइप का फूड है। जैसे घी है तो हर प्रकृति के इंसान के लिए वो ठीक पड़ता है। अगर कोई पित्त प्रकृति का है तो उसका पित्त शांत करता है, वात प्रकृति का है उसे चिकनाई देता है, इवन कफ प्रकृति का है उसका फैट गलाता है। उसी तरह ये मिलेट्स भी हर प्रकृति के लोग खा सकते हैं। या तो इसे आप ठंड में, गर्मी में, सभी मौसम में खा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा ये हीट प्रोड्यूसिंग है, या कभी कभी किसी को ये भी लगता है कि ये कफ प्रोड्यूस कर रहा है। पर आपने देखा होगा जब आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उसे भी हम गला के खाते हैं, है ना, तो उसका हीट निकल जाता है। तो इसे भी हम डेफिनेटली गलाकर ही खाते हैं, तो इसमें कोई भी हीट नहीं रहता है और ये बिल्कुल हर सीजन में खा सकते हैं आप। इनफैक्ट जैसे गर्मी के सीजन में बहुत गर्मी लगती है ना, कई बार बहुत ज्यादा ठंड में भी आप जाएंगे पर आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है। आप जब इन मिलेट्स को खाते हैं और प्रॉपर लाइफस्टाइल में रहते हैं तो आपका रेजिस्टेंस बल्कि बढ़ जाता है, आपको उतना ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी में भी यू विल फील कंफर्टेबल एंड इवन ठंड में भी आपको उतना ज्यादा मतलब आप कंफर्टेबल हो पाएंगे। So there's a question from one of the viewers, that is jowar cooling for the body? Yeah. It is. Okay. Yes. Okay. Okay, now one more, you have to tell the viewers कि ये diabetics के लिए रामबाण क्यों है? वो बहुत जरूरी है. I think we spoke about it last time, but yes, it is something so important. हाँ, डायबिटिक्स के लिए ये इतना अच्छा इसलिए है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी ही डिजीज में ये बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटिक्स के लिए इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज
ये बहुत स्लो रिलीज करता है, ये बहुत ही लो जीआई फूड है। 5 to 7 आवर्स का टाइम लेता है ये ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करने में। सो ये आपकी शुगर को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। तो जब आप इसे खाना शुरू करते हैं तो विद इन 1.5 months यू विल फील कि आपको बहुत अच्छे से बैलेंस आउट होती जा रही है आपकी शुगर। अगर हाई शुगर है वो भी बहुत अच्छे से बैलेंस आउट होती जा रही है। या अच्छा, कोई बेसिक रेसिपीज इनकी, लाइक जस्ट बेसिक रेसिपीज? हाँ, जैसे अभी, हाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आप इससे राइस बना सकते हैं 2.5 times या उससे ज्यादा पानी लेकर, है ना। तो राइस बनाना बिल्कुल सिंपल है, सोक किया एंड जस्ट एज वी कुक राइस, हमारा पैडी राइस जैसे बनाते हैं सेम वैसे ही हम इसे थोड़े से ज्यादा पानी में कुक करेंगे, बन जाएगा। So है is ना? it one question, are whole millets more nutritious than the atta? Than the millet देखिए, atta? नहीं ऐसा नहीं है, मिलेट आटा भी उतना ही न्यूट्रिशियस है बट इट स्पॉइल्स वेरी क्विकली। Okay. या उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी और 1 वीक तक आप अगर खा रहे हैं तो इट्स ओके। Okay. या हाँ, so राइस के अलावा so like खिचड़ी और whatever, हाँ, तो जो चीजें हम राइस से बनाते हैं ना वो वो सब सारी चीजें इससे- तो इससे बनी जाती हैं। जैसे अगर आपको दलिया बनाना है तो आप इसे सोक कीजिए और फिर रोस्ट करके, जैसे हम कैसे गेहूं का दलिया बनाते हैं तो थोड़ा रोस्ट करते हैं ना, वैसे ही इसे आप अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। मतलब इसका थोड़ा सा कलर, मतलब आप इसे गीला ही रोस्ट करना शुरू कर सकते हैं, सुखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Okay. हाँ, बस आप उसे छन्नी में निकालिए थोड़ा और यू कैन जस्ट प्लेनली स्टार्ट रोस्टिंग इट। या तो रोस्ट करेंगे ना तो कितना रोस्ट करना है, जैसे आप इसका थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा कलर डार्क हो जाएगा, थोड़ा उसमें एक बीनी बीनी सी एक रोस्टिंग की अरोमा आने लगेगी, है ना। और थोड़ा सा आप उसे देखेंगे ना तो थोड़ा उसका ग्रेन आवाज भी करने लगेगा, ऐसे छन छन की उसमें आवाज भी आएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि दे आर प्रॉपरली रोस्टेड, क्योंकि प्रॉपरली रोस्ट नहीं किया तो मॉइस्चर रह गया तो आपका सारा ग्रेन खराब हो जाएगा, है ना। तो प्रॉपरली से आप रोस्ट करेंगे, उसके बाद आप इससे खीर बना सकते हैं, बहुत अच्छी खीर बन जाएगी। या आपकी लापसी होती है या इस तरह से दलिया होता है, आप इसे बना सकते हैं। प्लस राइस के रूप में भी आप इसे रोस्ट करके बना सकते हैं, तो उसका भी थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाएगा। और इसी को अगर आप थोड़ा मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे तो फिर आप उससे उपमा बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। इनफैक्ट इसे मिक्सी में पीस के और भी बहुत चीजें बनती है, जैसे विदाउट रोस्ट किए वैसे भी अगर आपने ग्रेन को मिक्सी में पीसा ना तो यू कैन मेक सो मेनी थिंग्स आउट ऑफ इट। बेसिकली जो भी चावल से बना सकते हैं वही इन्हीं मिलेट से भी बना सकते हैं। राइस एंड व्हीट, उनसे Right. जितनी भी चीजें मिली सारी चीजें इससे बन The जाएगी। question from Asha saying, हाँ, if wheat is not good, then why is buckwheat? She's written, why isn't buckwheat? Why is buckwheat good? सी बकव्हीट इज अ टोटली डिफरेंट वैरायटी। इट्स उसमें व्हीट लिखा हुआ आता है, उसके नेम में व्हीट है बट इट हैज नो रिलेशन टू व्हीट। इट्स इट्स एक्चुअली अ स्यूडो ग्रेन। Yeah. ये एक ग्रेन भी नहीं है, ये एक टाइप का सीड होता है जो हमारी मतलब एक तरह का सीड होता है बकव्हीट। तो इसीलिए हम इसे फास्ट वगैरह में खाते हैं, आपने देखा होगा। इट्स वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी Kuttu गुड। ka atta, like buckwheat is हाँ, kuttu. कुट्टू का आटा तो काफी न्यूट्रिशियस है और अच्छा है एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू व्हीट। Hmm. या And there's one more question, that how do we make rotis out of this, since there's no gluten in it? या तो इसमें एक्चुअली ग्लूटेन नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक अभी तो हमने इतने मतलब ना 5 6 7 तरीके से रोटियां बनाने लगे हैं अलग अलग ढंग से इससे। तो इसमें बेसिकली आपको थोड़ा सा इसे कुछ ऐसा बाइंडर देना पड़ेगा जो इसे बाइंड कर सके, वरना थोड़ा ड्राई सी बनेगी और रोटियां टूटेंगी, है पर ना। जैसे तो ज्वार बाजरी नाचनी में भी, आई मीन ऑल दीज आर ग्लूटेन फ्री, और उनसे भी बनाते ही हैं रोटियां। हाँ, लेकिन उसको थोड़ा सा आप गर्म पानी से लगाते हैं ना तो ठीक हाँ बन जाती, पर इसमें फाइबर ज्यादा होता है ना हाँ। तो वो थोड़ा ऐसे टूटने लगती, इतनी अच्छी बन नहीं पाती है। तो इसमें इसको बाइंड करने के लिए आप या तो जैसे आलू डाल सकते हैं या दाल डाल सकते हैं। दाल में भी उड़द दाल बेस्ट बाइंडिंग देती है, जैसे आपने देखा होगा चिकनी होती है
शकरकंदी डाल लिया, या फिर जैसे कद्दू का प्यूरी डाल लिया, पालक का प्यूरी डाल लिया, थोड़ा सॉफ्टनेस भी होगी और थोड़ा बाइंडिंग भी मिलेगा। हाँ, तो आई थिंक anything else you want to add? I think we've covered like I think most of the practical aspects on how to cook with these. We're up for Q&A if anybody has any questions. So yeah, somebody is asking how to make ambli. I think that you can cover in the cooking session, or you want to yeah, ambli is out of it. we will definitely cover it in the cooking session, but मैं बताती हूँ कि अम्बली जो है वो मिलेट्स की सबसे अच्छी डिश है. It is the most nutritious dish and it has nothing. It is very simple. तो उसमें आपको सिर्फ वाटर एंड मिलेट्स. पहले मेघना जी बता दीजिए, दूसरों को पता नहीं होगा अम्बली क्या है. लाइक इट्स प्रोबायोटिक. मैं बता रही हूँ, आई एम टेलिंग. तो वही मैं बता रही हूँ अम्बली के बारे में कि अम्बली बनाने के लिए हमें वी नीड ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स, वाटर एंड मिलेट्स, नथिंग एल्स. तो मिलेट्स को हम सोक करके कुक करते हैं, राइट. पर इसमें इसे कुक करने के लिए 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं. वन थिंग इज कि इसमें पानी, जैसे आप जब चावल बनाते हैं तब आप उसमें सिर्फ लाइक 3 टाइम्स 4 टाइम्स वाटर यूज करेंगे, राइट. लेकिन जब अम्बली बनाते हैं तो 8 टाइम्स 10 टाइम्स इतना पानी में उसे पकाते हैं. रीजन क्या है उसका? मैं बताती हूँ. और सेकेंडली ये रहता है कि जब हम इसे कुक करते हैं अम्बली बनाने के लिए ना, तब हम इसमें नमक ऐड नहीं करते हैं, राइट. तो अम्बली इज नथिंग बट इट इज जस्ट फर्मेंटेड मिलेट्स, राइट. तो आप इसे जब कुक करते हैं ना, तो आप किसी भी बर्तन में इसे कुक कर सकते हैं, लाइक स्टील के बर्तन में कुक कर सकते हैं, पीतल के बर्तन में. लेकिन उसके बाद जब हमने इसे कुक कर लिया है, वी हैव टू कीप इट फॉर फर्मेंटिंग, है ना. हाँ, तो फर्मेंटिंग के लिए रखते हैं तो उसे फर्मेंटेशन के लिए ओनली एंड ओनली क्ले पॉट में रखते हैं. अगर आपने क्ले पॉट में नहीं रखा है तो फिर आपका अम्बली प्रिपेयर नहीं हुआ, देन इट इज समथिंग एल्स. तो इसे क्ले पॉट में हम इसलिए रखते हैं बिकॉज इट नीड्स एरेशन, ताकि उसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, तो वो एरेट करते हैं और माइक्रोब्स. और हम इसे इतना पतला भी इसलिए रखते हैं कि माइक्रोब्स को डेवलप होने में मदद मिलती है. मिट्टी के मटके में रखा रहता है और इसमें हम पानी थोड़ा ज्यादा रखते हैं, राइट. तो दैट इज द रीजन व्हाई वी डोंट ऐड सॉल्ट टू इट, क्योंकि अगर आपने सॉल्ट ऐड कर दिए तो उसके सारे माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे एंड कुछ भी डेवलप नहीं हो पाएगा. और उसको उतनी ही देर फर्मेंटेशन के लिए रखना है जितनी देर में आपके रीजन में दही जम जाता है. तो वंस इट इज फर्मेंटेड, उसमें कोई स्मेल नहीं आएगी. आपको लगेगा कुछ खट्टी स्मेल आएगी या कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. उसमें बिल्कुल जैसा आपने इसे छोड़ा था ना, आपको वैसा ही फील होगा. तो कैसे पता चलेगा कि फर्मेंट हुआ है कि मतलब सी फर्मेंटेशन क्या करना है? हाँ, कवर कैसे करना है? कवर बेसिकली इसे कुक करने के बाद ना मिट्टी के मटके में आपने रखा है और फिर इसे एक आप ऐसे कॉटन के कपड़े से कवर कर दीजिए, उसके ऊपर मिट्टी का लिड लगा दीजिए, है ना, ताकि ऊपर से कुछ अलग टाइप के जो भी नेचर में माइक्रोब्स है, हर माइक्रोब उसमें एंटर ना कर पाए. इसलिए तो बेसिकली फर्मेंटेशन का प्रोसेस इसमें जब हो जाता है तो मिलेट्स के मैंने आपको बताया जैसे कितने गुण हैं, तो वो गुण इसमें 20 टाइम्स बढ़ जाते हैं, बहुत टाइम्स बढ़ जाते हैं. सो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो जाती है यानी बहुत हेल्दी हो जाती है. तो हमारे पेट के माइक्रोब्स के लिए इट इज़ अ वेरी गुड प्रोबायोटिक एंड अ प्रीबायोटिक. जैसे हमारा दही है, इट्स अ प्रोबायोटिक, दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रीबायोटिक. ये बहुत ज़्यादा हमें फायदा करती है. और इसे जब खाते हैं फर्मेंट के बाद, तो फर्मेंटेड होने के बाद तो हीट कर सकते हैं उसे वापस? नहीं, क्योंकि अगर आप हीट करेंगे तो फिर माइक्रोब्स मर जाएंगे, है ना. सो आपको इसकी इतनी चिंता नहीं करनी है कि ये कितना फर्मेंट हुआ है कितना नहीं हुआ है, बिकॉज आपने कुक करके कोई चीज रखी है तो फर्मेंटेशन प्रोसेस तो उसमें जारी है ना. आप जब भी खाएंगे वो कुछ फर्मेंटेशन तो उसमें हुआ ही है, और ज्यादा हो गया तो वो स्पॉइल भी हो जाएगी.
जब उसमें एक रेंसिड सी स्मेल आए या खट्टी सी स्मेल आए तो देन वो फिर ओवर फर्मेंट हो गया है, देन दैट्स नॉट गुड इनफ फॉर अस। तो उसमें कोई ऐसे आपको स्मेल वगैरह कुछ नहीं आएगा। सो बेसिकली उसे कुक करें तो कुक भी क्ले पॉट में ही करना है या कोई भी बर्तन में कर सकते हैं? आप क्ले पॉट में कुक कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट उसे फर्मेंटेशन के लिए इट्स नेसेसरी कि वो क्ले पॉट में ही रहे। सो उसे कुक किया फिर क्ले पॉट में डाल के like you cover it with a muslin cloth या कोई भी cotton cloth and then leave it for as long as आपके रीजन में दही जमता है and then have it cold। और उसमें फिर बाद में आप कुछ ऐड कर सकते हैं, नमक या कुछ? यस यस यस, खाने के लिए जस्ट खाने से पहले आप उसमें नमक ऐड कर सकते हैं, पाम जैगरी ऐड कर सकते हैं, अचार से खा सकते हैं, दाल से खा सकते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन कुक करते टाइम हमें उसमें सॉल्ट ऐड नहीं करना है और फर्मेंटेशन के टाइम भी ऐड नहीं करना है। ओके या so I think we are done, I think, and yeah, there are no more questions. I'll just check. So there's question, have to eat both water and millets in Amli? Yeah, the water will be, there's a question that whether to have the water also in which it was cooked, but it will dry up only na? हाँ, थोड़ा ड्राई अप होगा, पूरा ड्राई अप नहीं होगा, लेकिन वो वाटर एक्चुअली जितना आपको लग रहा है उतना ज्यादा वो रनी होगी नहीं, क्योंकि ये स्वेल अप होता जाएगा रखे रखे भी ना, इट वोंट बी वेरी वेरी रनी। और आप इजीली इसे, एंड इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू, कितना आपको डालना है, 6-7 टाइम्स डालना है, 8 टाइम्स डालना है, 10 टाइम्स, बट इट्स डेफिनेटली इट शुड बी रनी, इट्स नॉट लाइक हार्ड या वैसे नहीं होगी। ओके और ये अम्बली कैन बी मेड ओनली विद होल मिलेट्स या फिर उसके रवे से या फिर आटे से भी बना सकते हैं? जैसे बनाना चाहे किसी भी तरह बना सकते हैं। ओके किसी चीज से बना सकते हैं, फॉर्म में बना सकते हैं। हाँ। I think we are done for today. I think we've we'll covered. just wait for 1 or 2 more minutes if somebody has a question. If there are any more questions, but I think you've explained everything so beautifully and clearly and covered everything, all the aspects that so we'll just wait for. And I just want to share with the viewers that I've been having this amli for some time and it tastes as good as the regular the key, whatever you have, the khichdi. So yeah. I think there are no more Someone questions. is, I think, raising hand. Which oil is best to cook? Whatever is available in your region, but it should be cold pressed or bull driven, not refined. Refined oil तो कोई भी अच्छा नहीं है, but जो भी oil आप use करें, like if you are in Mumbai, तो आपके लिए तिल का तेल या नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, तीनों अच्छे हैं. You can use them. I think it has stopped or something. I can see your questions, but I think the screen is stopped or something. Sujata, please see. Can you hear me? I don't know. I think Sujata's logged out or something. Okay. So can you all hear me? Yes, we can hear you. Okay. I thought the screen is no, I thought there's some problem. So there's a question from someone, can black rice be eaten? तो एक्चुअली सारे राइस, जितने भी राइस होते हैं ना, दे आर ऑल नेगेटिव ग्रेन्स, तो फाइबर किसी में भी नहीं होता है, उसका एडवर्टीजमेंट कुछ भी हो, इट मे बी न्यूट्रिशियस और व्हाटएवर, बट दे आर ऑल जीरो फाइबर, आई मीन वेरी लेस फाइबर, सो राइस सभी नेगेटिव ग्रेन्स हैं.
या somebody is asking कि locally available है ये, तो हाँ बॉम्बे में ऑर्गेनिक स्टोर्स पर जनरली आपको ये मिल जाएंगे. यस, रेड राइस में आयरन होता है, दैट इज ट्रू, लेकिन रेड राइस भी नेगेटिव ग्रेन है. ऑल राइस आर नेगेटिव ग्रेन्स. Sama rice is our barnyard millet in the polished form. तो सामा राइस आप ले सकते हैं. इट्स मच बेटर देन व्हीट एंड राइस, बट इट इज इन द पॉलिश्ड फॉर्म. सो इट्स बेटर. अगर आपको अनपॉलिश्ड मिल सके तो आप अनपॉलिश्ड ही लीजिए. बॉम्बे में जैसे स्वदेशी फूड्स हैं या नेचर्स ब्लूम है, इन सब जगहों से आपको मतलब ये मिल सकते हैं मिलेट्स, और all 5 you can get from there. Yes, it is true. I'm just taking the questions. Asha Khandwala is asking कि राजगीरा एक सुपर फूड है तो कैसे है. राजगीरा is actually again a pseudo grain. It's a seed. और ये किनवा का आपने नाम सुना होगा, उसका इंडियन कजिन है. तो obviously, and see, when I'm telling you about the good properties of positive millets, that doesn't mean कि जो हमारे neutral millets है, they are not good. They are also very nutritious and they are also good, but they don't possess the healing properties, right? So they are also nutritious. So we are not saying कि आप वो use मत कीजिए, लेकिन उनमें वो healing properties नहीं होती हैं. इसलिए if you need some kind of healing, तो you have to switch on to the 5 positive millets. Otherwise you can eat all the millets. आप ज्वार, बाजरा, रागी, राजगीरा, कुट्टू सब खाइए. there is no problem. Any more questions? I think the audience is content and satisfied. Okay. So, Tingan, thank you. Thank you so much, Meghna ji, Yes. for again a wonderful You're welcome. session. So, and Yeah. yes, and you know, last time we got such a positive feedback from all our viewers, and they were raring to go, you know, all enthusiastic to start cooking. But I asked them to hold on. I said, you know, just wait for session 2, because there are quite a few do's and don'ts, you know, in cooking with these millets. So I didn't want them to just, you know, start without knowing all the details about it. So Sujata ji, if like our viewers want the cooking classes, I do the cooking classes also. Online, I take the cooking classes. It would be nice that if Pavitra platform wants to do it, or like you decide. So like if our viewers, they actually buy the millets and then we do the sessions, now it would be even more better. Better. Yeah. So I think we can space it from today. Yeah. We can, you know, we'll soon announce cooking with millet session, like live demo with her. So it will be announced on a WhatsApp group. So whoever's not a part of that group can just put your phone number in the chat box. So we'll add you and we'll update you. You know, we'll soon announce on the group. Yeah, and if they could buy, then obviously when we'll start the cooking sessions, it will be so much better. They can just start cooking. Yes, absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah, so whoever's not already on the group can just type your numbers on the chat box. So we'll add you. So yeah. And yeah, like I said, I hope the audience has got all, because they had so many questions last time. And as promised, you answered all of them. So hopefully, you know, all their answers, all the questions have been answered, because you've really taken us, you know, through the practicalities of cooking with millets very well, beautifully explained. Thank you. Yes, Thank you so much. And it's my pleasure to be with the Pavitra platform. Thank you we so just much, want Meghna. to spread the word. I just wanted to share with you कि when I had done my first course in millets, ना जब मैं बॉम्बे आई थी millets का course करने आई थी,
तब मेरे साथ 3-4 इस्कॉन से प्रभु जी भी आए थे एंड दे वर आल्सो डूइंग द कोर्स विद मी. और पुणे इस्कॉन से भी आए थे, बॉम्बे से भी आए थे, एंड इस्कॉन पीपल आर एक्चुअली टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन इट. Yeah. Because they are, I mean, it's a holistic step. I mean, if you Yes, switch to yes. these, you know, these Yes. nutrient dense grains, it's holistic every which way, your Yeah. body as well as the planet. Yes, yes. So yeah, it's a win-win. Yeah. So I think there's a question that you can take in the chat box. It's related to, I think. So What is it? I'll just check. Unpolished Sama, what is the name? Yeah, unpolished Sama is barnyard millet. Right. So I think with that, we've covered all. Yeah. And before we end, an earnest plea, let's all together make conscious and sustainable choices in the post-COVID world. It's not an option anymore. It's an absolute necessity, an absolute need of the hour. So let's choose wisely and reset our systems, not just of our bodies, but Mother Earth too. Yeah. So on that note, thank you so much, everybody. Thank you once Yes. again. And thank you, Meghna Thank ji. you. Thank you so much. Thank you so much. Yeah.